میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ ہندوستان میں اللہ کے نام پر وقف کی گئی لاکھوں ایکڑ اراضی کا قانون اب تبدیل ہو گیا ہے۔ انگریزوں نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی۔ اسی دوران مسلم حکمرانوں کی جانب سے جو املاک و جائیداد وقف کی گئی وہ اب بھی مسلمانوں کی ہے، جس کی تعداد ہندوستان میں تیسری سب سے بڑی املاک مانی جاتی ہے، اور یہ پوری املاک ملک کے مختلف اوقاف بورڈ کے ماتحت آتی ہے اور اسے حکومت کی نگرانی میں انفرادی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کسی مسلمان نے کبھی یہ سنا ہے کہ وقف کی املاک پر قبضہ کرنے والے مسلمانوں کو یا قابض افراد کو کبھی سزا ملی ہے، یا پھر اپنی ہی املاک کو حاصل کرنے کے لیے دستاویزات ہونے اور اوقافی اداروں کی تصدیق ہونے کے باوجود بھی غریب مسلمان کبھی بھی ان اوقافی اراضیات کو کھل کر استعمال نہیں کر پائے ہیں؟ میں نے تو یہاں تک ریسرچ کیا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انجینئر طالب علم کو بھی پتہ نہیں کہ اوقافی املاک ہوتی کیا ہے۔ یہ ایک خود ساختہ ادارہ ہے، اس کے باوجود اس ادارے میں IAS IPS عہدیداروں کو متعین کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وقف بورڈ حکومت کا ہی غلام دکھائی دیتا ہے۔ دیکھنے اور سننے والوں کو وقف بورڈ بہت طاقتور ادارہ دکھائی دیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کھوکھلا ادارہ یہی ہے۔ اربوں روپوں کی آمدنی والے اس ادارے کی دیکھ ریکھ کے لیے حکومت کی جانب سے اعلیٰ عہدیداروں کے تقرر کو یقینی بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ افسران حکومت ہی کے نمائندے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو دین، اوقاف اور شرعی قوانین کی الف تک معلوم نہیں، ایسے لوگ اوقافی اداروں کے متولی یا سرپرست بن جاتے ہیں۔ یہ ادارہ اب نام کے لیے وقف بورڈ ہے، جہاں صرف اور صرف سیاست ہی چلتی ہے، اور یہی چور اچکے، لوفر، لفنگے، غنڈے، جواری اور زانی ممبر صدر متولی بنے بیٹھے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ادارہ اب دینی ادارہ نہیں رہا، بلکہ ضرورت کے مطابق اپنی سیاست کو چمکانے کا ادارہ بن گیا ہے۔ لاکھوں ایکڑ وقف اراضی پر اب BJP کی نظر ہے۔ بات کا نمبر عیسائی برادری کا آتا ہے۔ ایسے میں دونوں ایوان کی کارروائی کے دوران وقف ترمیمی بل پیش کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے اس بل کو منظور کروا لیا، جس کا نام یونائیٹڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینس اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 رکھا گیا ہے۔ یہ نیا بل 1995 کے وقف ایکٹ میں ترمیم کے لیے لایا گیا ہے، جس میں خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ زمین کا عطیہ اب صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو مسلسل 5 سال تک مسلمان رہا ہو اور عطیہ کی جانے والی جائیداد اس کی خود کی ہو۔ نئے بل میں زمین کا سروے کروانے کا حق وقف کمشنر کے بجائے کلکٹر کو دیا گیا ہے۔ حکومت کے قبضے میں وقف املاک سے متعلق تنازع میں کلکٹر کا فیصلہ مؤثر مانا جائے گا۔ اس بل کے مطابق وقف ٹریبیونل کے فیصلے کو حتمی نہیں سمجھا جائے گا۔ اپوزیشن اور مسلم تنظیموں کے اعتراضات کے باوجود یہ ترمیمی بل ایوان میں پاس ہو گیا، جسے اپوزیشن نے غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اب اس بل کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے۔ ایسے میں ہندوستان کے مختلف شہروں دیہاتوں میں مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے۔ مغربی بنگال میں یہ احتجاج تشدد اختیار کر گیا، جہاں 3 افراد ہلاک تو کئی زخمی ہو گئے ہیں، اور حکومت اس بل پر کیا کہتی ہے اس پر آپ ایک نظر ڈال لیں۔ وقف سنشودھن بل 2024 جو کچھ لوگوں کے بیچ غلط فہمی کا کارن بن گیا ہے، لیکن آج ہم اسے پوری طرح سے صاف کریں گے۔ کیا ہے وقف سنشودھن بل اور کیا ہے اس کو لے کر وواد؟ سرکاری رپورٹس کے انوسار بھارت میں وقف کی لگ بھگ 6 لاکھ سے ادھک سمپتیاں ہیں، جن میں 40% سے زیادہ حصہ اویدھ روپ سے قبضہ کیا گیا ہے۔ سال 2013 میں کانگریس نے وقف کو اپار شکتیاں دے دی، جس سے جن لوگوں کی زمینیں وقف قانون کے تحت اویدھ روپ سے قبضائی گئی ہیں وہ کورٹ کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹا سکتے۔ ایسے میں یہ اویدھ قبضے عام آدمی اور سرکار دونوں کے لیے مصیبت بن گئے۔ اب وقف سنشودھن بل سامنے آیا ہے، جو ان اویدھ قبضوں کو ہٹانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس کے تحت وقف سمپتیوں کو ڈیجیٹل طریقے سے پنجیکرت کیا جائے گا، جس سے وقف سمپتیوں کا استعمال مسلم سماج کی بھلائی کے لیے کیا جا سکے گا۔ تو اگلی بار جب آپ اس بل کے بارے میں سنیں تو بھرانتیوں سے بچیں اور اسے ایک سکاراتمک بدلاؤ کے روپ میں دیکھیں۔ متنازعہ وقف بل کے خلاف ہندوستانی مسلمانوں نے قومی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ ایسے میں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حکومت اس بل کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے
लाया गया बिल क्यों करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब बिल की मंजूरी के बाद मुल्क भर में ज़बरदस्त एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। अपोजिशन जमातों, मुस्लिम तंजीमों और इंसानी हुकूक के ग्रुप्स ने इस बिल को अक़लियतों के खिलाफ साजिश और आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। कोलकाता, रांची, अहमदाबाद, बिहार, मणिपुर, हैदराबाद के अलावा मुतअद्दिद शहरों और देहातों में इस बिल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। रियासत तेलंगाना के शहर तांडूर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बाद हैदराबाद में कई दिनों से इस मुतनाज़िया बिल को लेकर मुसलमान सड़कों पर हैं और वक्फ बिल वापस लो के नारे बुलंद किए जाने लगे हैं। अहमदाबाद में पुलिस ने इस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बना दिया और तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा मुजाहिरीन ने बताया कि उन्हें बेवजह हिरासत में लिया गया है। दीगर शहरों में जारी मुजाहिरों में मुसलमानों ने वक्फ बिल में तरमीम, अक़लियतों के मजहबी और जायदादी हुकूक पर हुकूमत का हमला कहा है। मणिपुर और कोलकाता में सबसे बड़े एहतजाज रिकॉर्ड किए गए और मुजाहिरीन बिल को अक्सर मुस्तरद करते हुए इसे फ़िरक़ावाराना एजेंडा करार दिया। उत्तर प्रदेश में हुकूमत बीजेपी की है और यहाँ का सीएम, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, ना उसके ख़ानदान का पता है और ना ही बीवी बच्चों का, वो मुसलमानों का दुश्मन नंबर 2 है। पहला नंबर किसका है ये सभी को पता है। ताहम उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। लखनऊ, संभल, बहराइच, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे हसास इलाकों व अजला में इजाफी फोर्सेस मुतय्यन की गई है। और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में किए जाने वाले एहतजाज का खाका पेश करते हुए कहा है कि सिर्फ इस बिल के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, बल्कि पुरअमन तरीके से तमाम जमहूरी ज़राए इस्तेमाल करते हुए एहतजाजी धरनों, मुजाहिरों, काली पट्टियां बांधकर अलामती एहतजाज का एहतमाम किया जाएगा और इन एहतजाजी धरनों के अख्तिताम पर हुक्काम जैसे सदर जमहूरिया, वजीर दाखिला के नाम मेमोरेंडम दिया जाएगा। ये तमाम प्रोग्राम ईद उल ज़ुहा तक चलेंगे, जो तमाम बड़े और छोटे शहरों में मुनक्कद किए जाएंगे। इसके बाद आइंदा का प्रोग्राम तय किया जाएगा। अब अगर देश की मौजूदा सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे तो हमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि ये एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार करता जाएगा और इस मुतनाज़िया बिल के बाइस पूरा देश हंगामों की लपेट में आ जाएगा। यहाँ मुसलमानों को ये समझ लेने की ज़रूरत है कि वक्फ की जायदादें सिर्फ गरीब मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए अतिया दी गई हैं। इनके इस्तेमाल से मुसलमानों की गुर्बत, उनकी माशी, समाजी, तालीमी पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। अब तक मुसलमान ख्वाब गफलत में थे, अब उन्हें जाग जाने की ज़रूरत है और अल्लाह की ज़मीनों की रखवाली हर मुसलमान का पहला फरीज़ा है, ताकि इन अराज़ियात के इस्तेमाल से हम अपने स्कूल्स, मदरसे, कॉलेजेस और दवाखाने बना सकते हैं। हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन अराज़ियात को बचाने के लिए हर मुसलमान को सड़क पर आ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस मुतनाज़िया बिल के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करना ज़रूरी है, जो किसानों के एहतजाज की तरह हो। तभी हम हुकूमत को घुटनों के बल ला सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का रोना छोड़िए, जो अपनों के ना हो सके और दूसरों के क्या होंगे। अब हमें पहले से ज़्यादा खुद को समझने की ज़रूरत है। तमाम मुसलमान और ईसाई हजरात को इस बिल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाने की ज़रूरत है, ताकि हुकूमत की ख़राब नीयत का भांडा फोड़ा जा सके और अपनी ज़मीनों को बचाया जा सके। यही एक रास्ता है जिस पर चलते हुए हम पुरअमन एहतजाज को कामयाब बनाएं। ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। ऐसे हौसले के साथ अब सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और आगे बढ़ें, तभी हमारी जीत होगी। वरना ये शेर हम पर सादिक आएगा कि मैं जहाँ क़त्ल हो रहा हूँ वहाँ, मैं जहाँ क़त्ल हो रहा हूँ वहाँ मेरे अजदाद ने हुकूमत की। तो हुकूमत से गुजारिश है कि जो वक्त तरमीमी बिल है वो हमारे लिए जो है एक्सेप्टेबल नहीं है,
क्योंकि हम मुसलमान अपनी शरीयत में मदाखलत नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये वक्त तभी बिल वापस लिया जाए। आज जो हमारे हिंदुस्तान में पूरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हिदायत दी गई थी कि जो है अपने हाथों पे काला पट्टा बांधना है, और वो भी सुबह से लेकर शाम तक बांधना है। उसके बाद में अपने अपने मस्जिद के अंदर एक प्रोटेस्ट करना है, वो भी साइलेंस की तरह से, किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए, कि जो कानून लाया गया है, अंधा कानून मुसलमानों के ऊपर में, उसको वापस लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने इसका साथ दिया, पट्टी भी बांधी और ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये बिल वापस लेना है। जो बिल हमारे मुसलमानों की शराइत में जो है दखलंदाजी करती है, इसको कभी कबूल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम सरकार से जो है गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ के बिल को फौरन से फौरन वापस लिया जाए। आज हमारी मक्का मस्जिद में तकरीबन तमाम पूरे इंदिरा नगर के बड़े बूढ़े जवान बुजुर्ग सभी लोग ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये हमारा पहला एहतजाज है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस जुम्मा को ख़ास तौर पर मसाजिद के बाहर एहतजाज करने और इसी तरीके से कई अहम तरीक़े बतलाए हैं एहतजाज करने के। इंशाअल्लाह आज से लेकर जो पहला मरहला है 3 महीने का, बल्कि जब तक ये वक्फ अमेंडमेंट बिल रिटर्न नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम मुसलमान बराबर इस बिल के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। 100% ये बिल हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ, जो भी हमारे मुल्क का कानून है तमाम मजहब के लोगों को एक नज़र से देखता है। इसमें नफरत के तौर पर और मुसलमानों को दबाने के वास्ते सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ये बिल बनाया गया है, वरना पूरे मुल्क में जो भी वक्फ एंडोमेंट बिल एक्ट है वो किसी का नहीं बदलाया गया, सिर्फ मुसलमानों का बदलाया गया है। जिससे साफ समझ में आता है कि हुकूमत की निगाह जो है मुसलमानों के तईं बहुत अच्छी नहीं है। ये बोलने को मगरमच्छ के आंसू बहाकर हुकूमत कह रही है कि ये वक्फ की ज़मीन से मुसलमानों का फ़ायदा करेंगे। ये आज तक 12 साल से मुसलमानों को अपनी एक अच्छी निगाह से देखे नहीं है, वो आज हमसे क्या फ़ायदा करेंगे। हमको कोई तवक्को नहीं है, बल्कि हम इनसे तवक्को रखने को गलत समझते हैं। हम तमाम अहलियान तांडूत और ख़ास तौर पर इंदिरा नगर और मक्का मस्जिद के पूरे लोग इस बिल के 100% मुखालफत करते हैं और आज अहद करते हैं कि जब तक ये बिल रिटर्न नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम बराबर किस्म का एहतजाज करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे इस बिल को वापस ले।